So we'll start next thing. I think in last class we have discussed up to emissivity. हाँ तो डिस्कस किया था emissivity क्या होता है. What is emissivity? Ratio of emission power of the any body with respect to emission power of the black body. Emission power of the black body. ये तो पढ़ा था हमने. Small e lambda upon capital E lambda. Small e lambda, that is emission power of the any given body, and capital E lambda, that is emission power of the perfectly black body. Now today we will discuss Kirchhoff law. Kirchhoff law. What Kirchhoff law state in thermal properties? Thermal radiation के लिए Kirchhoff law क्या कहता है? So according to Kirchhoff law, emission power of any object and absorption power of any object, ratio of the emission power to absorption power is the constant at given temperature, and for the given wavelength. So according to Kirchhoff law, ratio of emission power to absorption power is always constant. क्या होती है बेटा हमेशा? Constant. That means E lambda upon A lambda, that is constant. You know what is the E lambda upon A lambda? E lambda emission power, A lambda absorption power. For the perfectly black body, A lambda equal to 1. A lambda equal to 1. ठीक है. और यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो for given temperature and wavelength. For given temperature and wavelength. समझ में आई चीज? कोई दिक्कत नहीं इसमें. अब यहां पे हमने कल एक चीज और पढ़ी थी कि वी नो E lambda upon E lambda equal to epsilon. ये पढ़ा था. That is emissivity. तो यहां से हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं? इसको हम लोग जो कांस्टेंट है ना, दैट इज इक्वल टू ई लैम्बडा. ये किसके इक्वल होता है? ई लैम्बडा के इक्वल होता है. ये किसके इक्वल होता है? ई लैम्बडा के इक्वल होता है. अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं, वापस से मैं इन दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ई लैम्बडा, दैट मींस इमिशन पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. तो अगर मैं इस इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, ई लैम्बडा अपॉन ए लैम्बडा इक्वल टू ई लैम्बडा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं क्या? ई लैम्बडा अपॉन ई लैम्बडा इक्वल टू ए लैम्बडा. और ये किसके इक्वल है बेटा? इमिसिविटी के इक्वल है. किसके इक्वल है? इमिसिविटी. तो ए लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा? तो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ किरचॉफ लॉ. अनदर फॉर्म ऑफ किरचॉफ लॉ. So what is the another form of Kirchhoff law say? Absorption power equal to emissivity. Absorption power of any object equal to emissivity. Absorption power किसके इक्वल होगा बेटा? Emissivity के. समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं. This is all about the Kirchhoff law. ये किसके बारे में है? Kirchhoff law के बारे में. समझ में आई बात? कोई समस्या है तो बताओ. ठीक. नेक्स्ट अपने पास इसमें आता है स्टीफन लॉ. Stephen's law of radiation. What is Stephen law says? You know what is the Stephen law? Stephen law क्या होता है? According to Stephen's law, energy associated with any radiation for the given wavelength. Energy associated with any radiation of given wavelength from per unit area per second will directly proportional to fourth power of the temperature. So according to Stephen law, energy
radiated for given wavelength by per unit area per second will equals to will directly proportional, not equal to, will directly proportional to fourth power of temperature. किसकी फोर्थ पावर के निकलोगे बेटा? फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर. सो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4. तो E इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा T की पावर 4. सिग्मा क्या है यहां बेटा? स्टीफन्स कांस्टेंट. सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट. इसकी यूनिट क्या बनेगी? सिग्मा इक्वल टू, ये क्या एनर्जी है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल. केवल यहां पे जूल लिखेंगे क्या? नहीं, एनर्जी बाय पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. पर सेकंड मींस टाइम से भी डिवाइड करना पड़ेगा, और साथ में T की पावर 4 भी आ रहा, तो K की पावर, केल्विन की पावर 4 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, K की पावर 4. डायमेंशनल फॉर्मूला पर यूनिट एरिया से डिवाइड करेंगे. एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. पर यूनिट टाइम के लिए सेकंड. ठीक है. अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो जूल का क्या होता है? M1 L2 T माइनस 2. मीटर का क्या होता है? L2 T और K4. ये है. फाइनल सोल्व करने से क्या बनेगा बताओ? M1 L0 T माइनस 3 K माइनस. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट. What is the value of Stephen constant? You know what is the value of Stephen constant? Sigma equal to 5.63 into 10 to the power minus 8 joule per meter square second K की power 4. This is the value of sigma. समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें सिग्मा की वैल्यू में. अब ये तो एक अनदर फॉर्म भी इसकी होती है, याद रख लेना इसकी. वैसे वो यूजफुल ज्यादा नहीं है आपके लिए, पर ठीक है, याद रख लेना. अनदर फॉर्म जिसको अपन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. ये क्या कहता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि भाई जो एनर्जी रेडिएटेड बाय पर यूनिट एरिया पर सेकंड, that is not directly proportional to given temperature, fourth power of the given temperature, but it is directly proportional to fourth power of difference of temperature of body and surrounding temperature. So here he say E that directly proportional to T minus T naught की power 4. And then E equal to epsilon sigma T minus T naught की power 4. So what is your epsilon? This is epsilon, emissivity. Epsilon, that is emissivity. यहाँ पे emissivity of body. अभी पढ़ा था ना emissivity क्या होता है पहले? emissivity क्या होता है? स्मॉल e लैम्बडा अपॉन कैपिटल E लैम्बडा. एप्सिलॉन, इसको बोलने में एप्सिलॉन बोलते हैं. इसका वर्ड का नाम क्या है? एप्सिलॉन. आगे 12th में जाके पढ़ोगे एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे ये एप्सिलॉन है केवल. ये क्या है? एप्सिलॉन. ठीक है. अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई. इसको तो केवल आप स्टेटमेंट ध्यान रखना कि स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि जो ई एनर्जी जो है, बाकी स्टेटमेंट सेम का सेम है. क्या लिखोगे? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग temperature. Directly proportional to fourth power of the difference of the temperature of the body to surrounding temperature. That is Stephen Boltzmann law.
समझ में आ गई बात? नेक्स्ट स्टेप इसमें एक लॉ आता है, दैट इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखो, वीन डिस्प्लेसमेंट एक लॉ बनाया फॉर द एनर्जी एंड लैम्बडा, ई एंड लैम्बडा के लिए। अब हर एक टेम्परेचर पे क्या होते हैं, हर एक रेडिएशन का वेवलेंथ आता है, वो तो हमने कल ही पढ़ा था कि हर एक टेम्परेचर पे हर एक रेडिएशन का क्या होगा, वेवलेंथ होगा। हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन होगा, हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन होगा। वो हमने देखा था लैम्बडा क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो एक गिवन टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए इस टाइप से एक एनर्जी है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका T इक्वल टू मान लीजिए 1000 केल्विन है। कितना है? 1000 केल्विन। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप देखते हो यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर कर दिया, तो यहाँ पे T कितना हो गया, 2000 केल्विन हो गया। कितना हो गया? 2000 केल्विन। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी के पीक भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अगर आपने तीसरा टेम्परेचर किया, इसमें क्या हो रहा है, ये T मान लीजिए 3000 केल्विन कर दिया। अब यहां देखो, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वेवलेंथ रिलेटेड टू मैक्सिमम एनर्जी, वेवलेंथ रिलेटेड टू ये 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 जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे लैम्बडा एम की वैल्यू क्या होती जाती है? क्या होती जाती है? डिक्रीज। तो वीन डिस्प्लेस, वीन ने यही बोला कि वेवलेंथ रिलेटेड टू द मैक्सिमम एनर्जी, वेवलेंथ रिलेटेड टू द मैक्सिमम एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो लैम्बडा मैक्स इक्वल टू बी अपॉन टी। तो बी यहां पे क्या है? वीन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट। तो हमारे पास बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टी। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? मीटर के लिए m0 L1 T0, केल्विन के लिए K1। दिस इज द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस इज द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट रेडिएशन, दिस इज ऑल अबाउट रेडिएशन। रेडिएशन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अपना इसमें टॉपिक आता है थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट इज स्पेसिफिक हीट। यू नो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट डेफिनेशन में यहां लिखूंगा नहीं, आपको लिखा दूंगा बाद में। तो स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड, heat required to increase temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius. Temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius. Heat required to increase the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius. किसी भी substance के 1 ग्राम का टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। That heat is known as specific heat. You know, when heat given to any system, that heat directly proportional to mass of the system, mass of the substance. Second thing, delta Q directly proportional to delta T, change in temperature, change in temperature. When we write these two equations at a time, delta Q directly proportional to m delta T. So delta Q, when we remove proportionality sign, we will use a proportionality constant, that m s delta T. What is the s here? S specific heat coefficient, specific heat constant. What is the value? Can we write S equal to delta Q upon m into delta T? हीट किस में? जूल में। तो यूनिट क्या बनेगी? जूल पर केजी इंटू केल्विन, जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा कुलदीप? m1 L2 T माइनस 2। जूल का याद है? अपॉन केजी के लिए m1, केल्विन के लिए टेम्परेचर के लिए k, क्या लेंगे? k। तो फाइनली क्या बनेगा? m1 L2 m0 सॉरी m0 L1 L2 T माइनस 2 और k माइनस 1। दिस इज द स्पेसिफिक हीट, दिस इज द स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट थिंग, हीट कैपेसिटी। क्या होता है? हीट कैपेसिटी। So heat capacity is heat required to increase the temperature of given substance, given mass, not 1 gram.
गिवन मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज सी। ठीक है, यू नो इफ एनी सब्सटेंस डेल्टा क्यू इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं कई बार m इंटू एस, m इंटू एस, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एम एस डेल्टा टी लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखते हैं? एम एस डेल्टा टी। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। इस एम इंटू एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है? पूरा गिवन मास है, उसको स्पेशल नंबर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? सी। क्या मिलेगा? सी, दैट इज हीट कैपेसिटी, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम इंटू एस। सी क्या यहां पे? हीट कैपेसिटी। अगर आपके पास 1 ग्राम की हीट मान लीजिए पता है, तो टोटल मास के निकालने के लिए क्या करेंगे? उस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट को। सो मास इंटू स्पेसिफिक हीट क्या मिलेगा आपको? हीट कैपेसिटी। क्या मिलेगा? अब डायमेंशन यूनिट में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स्ट्रा, उसमें जैसा था जूल, क्या था? पर केजी। तो इसमें क्या आएगा? जूल पर केल्विन आएगा। क्या आएगा? क्योंकि जूल पर केजी वापस से केजी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? वो कट हो जाएगा। यूनिट क्या होगी? कि हीट कैपेसिटी की जूल पर केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m1L2T - 2K-1। कोई समस्या यहां पर? कोई समस्या नहीं, पक्का? दिस इज द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मींस टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट थिंग अपने पास आती है इसमें, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक heat. Molar specific heat is heat required to increase the temperature of 1 mole substance, temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius, temperature of 1 mole substance by 1 degree Celsius. You know delta Q, अगर यहाँ मास के कंसिडर नहीं करेंगे तो डेल्टा Q गिवन हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, एंड डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा Q इक्वल टू n C डेल्टा T। C क्या है यहाँ पे? मोलर स्पेसिफिक हीट। C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। वो बड़ा सी था बेटा, ये छोटा सी यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? छोटा सी। लगा बेटा, चार्ज लगा जल्दी से। तो सी यहाँ पे क्या बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, छोटा सी यहाँ पे लेते हैं। तो C इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? डेल्टा Q अपॉन n इंटू डेल्टा T। यूनिट क्या बनेगी इसकी? जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाओगे? जूल के लिए m1L2T - 2, और मोल के लिए आप मोल लिखोगे, और केल्विन के लिए केल लिखेंगे। तो क्या बनेगा फाइनली? m1L2T - 2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कोई समस्या इसमें नहीं? अब यहां पे 2 टाइप की होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कितने टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की होती है। मोलर स्पेसिफिक कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की होगी। कौन कौन सी? एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक आपके पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की क्या होती है बेटा? कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों में ये लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा Q इक्वल टू यूज करेंगे ना, तो n CV डेल्टा T। CV क्या बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा Q इक्वल टू क्या यूज करेंगे? NCP डेल्टा T। CP किस लिए? प्रेशर के लिए।
समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, पक्का? सो दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या ये? मोलर स्पेसिफिक हीट। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज लेटेंट हीट। latent heat. What is latent heat? Heat required to change of state. Heat required to required to change of state. Change of state at constant temperature. Constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको किसी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो क्या होता है जब सॉलिड कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आता है, कहां पे आता है? जब टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट पे हो जाता है, अब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना। अब जब तक वो पूरा सब्सटेंस मेल्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर सेम का सेम रहता है। मतलब आप हीट तो दे रहे हो पर वो हीट आपको फील नहीं हुई। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द हिडन हीट। क्या बोलते हैं इसको? हिडन हीट, बिकॉज दिस हीट विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा उस पर? कांस्टेंट रहेगा। दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट। अब ये दो टाइप की होती है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको लिखते हैं किसे? Q इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है M, तो Q इक्वल टू होता है M इंटू L। L यहाँ पे क्या बेटा? लेटेंट हीट। L क्या है? लेटेंट हीट। तो L की यूनिट क्या बन जाएगी? Q बाई M। Q बाई, तो जूल पर केजी, जूल पर केजी। डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा लिख दूं मैं, M0 L2 T-2। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की लेटेंट हीट क्या होती है बेटा बताओ? हीट टू चेंज solid into liquid at melting point। melting point कहां पे बेटा? melting point पर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए, दैट हीट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो Q इक्वल टू डेल्टा Q इक्वल टू L इंटू एफ, सॉरी M इंटू एल एफ। एल एफ का मतलब क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक अनुपात होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इंटू वेपर इंटू गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट। कहां पर? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हीट रिक्वायर्ड, हीट टू चेंज लिक्विड इंटू गैस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। कहां पर? बॉइलिंग। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q इक्वल टू M इंटू एल वी। M इंटू एल वी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिखेंगे स्टेट चेंज ग्राफ। स्टेट चेंज व्हाट इज स्टेट चेंज ग्राफ? क्या होता है स्टेट चेंज ग्राफ? स्टेट चेंज को शो करता है। तो यहां पे देखिए, हम लोग यहां पे ले रहे हैं टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, और यहां पे ले रहे हैं हीट, कितनी हीट आप दे रहे हो। जब इनिशियली आपका यहां पे मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। और यहां पे क्या है सब्सटेंस का? बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप इनिशियली सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम है, जैसे जब आप हीट दोगे उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो कहां तक बढ़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट तक। अब मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद, कहां पे आने के बाद सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा?
मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ आपने यहाँ से यहाँ तक हीट दी, इस हीट ने कोई भी टेम्परेचर को इंक्रीमेंट नहीं किया, मेल्टिंग पॉइंट पे रहा। ये जो हीट हुई डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल एफ। एल एफ क्यों लिखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद जैसे ही पूरा मेल्ट हो गया वापस आप हीट दोगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कहां तक इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आके वापस से टेम्परेचर एक बार क्या हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि जब तक ये पूरा का पूरा बॉइल वेपर नहीं बनेगा, ये हुआ, इसके बाद वापस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ना लग जाता है। यहाँ पे जो हीट आई डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल वी, एम इंटू एल वी। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, विच हैज मोर एनर्जी और विच इज मोर डेंजरियस। 100 degree steam is more dangerous or more energy because it have energy in form of latent heat, hidden energy lies in steam. That's why 100 degree Celsius steam has more energy to 100 degree Celsius water. अगर 100 डिग्री का पानी है और 100 डिग्री की स्टीम है तो 100 डिग्री की स्टीम ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट के फॉर्म में एक्स्ट्रा हीट होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। किस फॉर्म में, लेटेंट हीट की फॉर्म में। समझ में आ गई बात, कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं। दिस इज ऑल अबाउट योर लेटेंट हीट कंसेप्ट एंड स्टेट चेंज। नाउ वी हैव टू थिंग, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. What is melting point? I think you everyone know. Temperature at which solid start to melt. Temperature at which solid start melt या start to change in liquid. समझ आया, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट वेपोराइजेशन, स्टार्ट टू वेपोराइज। ठीक है, ये तो हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज effect of pressure, effect of pressure on boiling point लेते हैं पहले। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा बताओ। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे नॉर्मली खाना बनाते हैं अपन खुले बर्तन में, पानी जो उबलता 100 डिग्री पे उबलना शुरू होता है, वही अगर प्रेशर कुकर में डालोगे ना वो 140 डिग्री पे उबलता है। कहां स्टार्ट हुआ उबलना, नॉर्मल में कितने में उबला, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इसीलिए बोलते हैं खाना प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहिए विक्रम। क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होके बचेगी वो 140 पे नहीं बचे। जो दाल के अंदर जो न्यूट्रिशन 100 डिग्री तक बच सकते हैं, नॉर्मली खुले बर्तन में 100 डिग्री भी नहीं होता, उससे भी कम पे क्या होता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे न्यूट्रिशन बचेंगे। 140 के अंदर जो दाल खाओगे ना उसमें केवल भूसा होता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं बचता है। ठीक है, अब अपने पास तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़े क्या लिखोगे बेटा, प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गई बात। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, मेल्ट होना होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर, उल्टा है इसका।
मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इस बेस पे एक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है? इस बेस पे हम लोग